Praise Lord. Thank Lord for that Abu brother said this is the prophetic word to unity. परमेश्वर को धन्यवाद देता है जो भाई अबू ने बांटा, ये बहुत एक भविष्यवाणी का एक वचन है एकता के विषय में। I just want to add one more incident on the same chapter that brother shared in Matthew 24 verse 37. और मत्ती 24 उसके 37 वचन से मैं बांटना चाहूंगा। Just Kiran brother, if you just share some slide, I just make 4 slides from the Bible house. Just little bit. I mean, it's cut. I don't know. Yeah. So just, in Matthew 24 verse 37 said that the end time will be like the coming the days of Noah. और मत्ती 24:37 में लिखा है कि अंतिम दिन जो है वो नूह के दिन समान होंगे। Yeah, and the same things in Hebrew 11 verse 7, brother please read. और इब्रानियों 11 उसके 7वें वचन में भी लिखा है। Yeah, it was the list of heroes in the faith in the Old Testament. और इब्रानियों 11:7 विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। Yeah, the same things like brother Abu said that we just think that this is the word of God and truth, brother Abu, that we have to warn the divine warn. और ये जैसे भाई अबू ने भी बताया कि ये परमेश्वर का वचन है और उससे हम एक चेतावनी पाते हैं। That the same things happens now that we need godly fear. Sorry brother. But the same things will happen nowadays. That the characteristics of a godly fear. और बिल्कुल वही बातें वापस होती है ये अंतिम दिनों में भी। And we need to prepare our ark. और हमें अपने जहाज को तैयार करने की आवश्यकता है। Just in Genesis, there's a story in 6 verse 3. It mentioned that God warned and give the Noah that their age should be 120 years. In Genesis 6 verse 3. और उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 अध्याय के 3 वचन में एक ऐसा वचन है जहां परमेश्वर ने निर्धारित किया कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी। The next slide says that Brother Kiran, next slide में is just I showed that the aim that time the 500 years, the age of 500 years Noah has the child Shem, Ham and Japheth. और उत्पत्ति के 5वें अध्याय उसके 32 वचन में हम ये भी पढ़ते हैं कि जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब नूह के 3 बेटे शेम, हाम और यफेत का जन्म हुआ। And in same way, chapter 7 verse 11 it says that the age of 600 the rain came. और अगले अध्याय के 11वें वचन में ये भी लिखा है कि जब वो 600 वर्ष का हुआ तब बारिश आई। Just there is a difference between 100 years, the birth of child and the rain come. और उसके बच्चों के जन्म में और उस बारिश में केवल 100 वर्षों की ही अंतर था। But God gave the word to Noah that 120 years before. और परमेश्वर ने उसको 120 वर्षों के पहले उस काम को दिया। So I thought that maybe Noah unmarried or just married or they have no child or the child is very small that time and God gave the word to Noah. और मैं सोच रहा था कि शायद जब परमेश्वर ने नूह से बात की शायद उसका विवाह नहीं हुआ था या तभी विवाह होगा या तब तक उसके बच्चे नहीं थे या बच्चे बहुत छोटे थे। But that time the whole world is the perverse generation, is just filled with the perverse generation. और उस समय का जो संसार था वो बिल्कुल दुष्ट ऐसा संसार था। So just we compare nowadays that we think that our kids are really have a tough time because the world is dark world. और अगर हम इसकी तुलना हमारे समय से करें जहां हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों का बहुत एक कठिन समय में पालन पोषण हो रहा है क्योंकि ये संसार बहुत ही दुष्ट है। Yeah, the Lamech has many sons and daughters like Noah because they have more relatives and the Noah's kids also growing with them. Sorry brother, can you repeat? Like Noah, Lamech, the father of Noah has many sons and daughters. और बिल्कुल नूह के जैसे नूह के जो पिता थे लेमेक उनके भी कई बच्चे थे। Yeah, they have son and daughter and Noah's Shem and Japheth also going with them. और नूह उन्हीं में बड़ा हुआ। Yeah, but Noah really is them such a way that they never turn from the God. पर नूह ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर से कभी नहीं पीछे मुड़ा।
They help to father's business. और नूह के बच्चे जो थे वो इस बात से पीछे नहीं मुड़े, उन्होंने अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाया। And I thought that maybe that time they have married and maybe they have a small family like us. That after marriage we have different family, और like father and mother. और मैं नूह के बच्चों के विषय में सोच रहा था, शायद तब उन्होंने विवाह किया होगा, हमारी तरह उनके छोटे परिवार होते होंगे, छोटे बच्चे होते होंगे। Now Noah, Shem and Japheth has no son, but still they have a small group of the husband and wife, three husband and three wife, like Noah. और उनके जो बच्चे थे वो भी वहां उनकी पत्नियों के साथ थे। But really they heard the God's voice and the command of his father. पर उन्होंने परमेश्वर की वचन को सुना और उनके पिता ने जो आज्ञा दी थी उस आज्ञा को सुना। Yeah, like the same things yesterday we just celebrate our church anniversary in the 8 years that we are really help each other so that we have a good ark like Noah. और कल भी जैसे हमने हमारी जो चर्च की 8वीं जो सालगिरह थी उसका उत्सव मनाया कि कल हम भी अपने जहाज को तैयार करें। Yes, the next slide. The same way Noah really that time he earned money for his family for the expense of his family, and side by side he may build the ark. और हमारी तरह तभी नूह ने भी पैसा कमाकर अपने परिवार की जो जरूरत है उनको भी पूरा किया और उसी समय उस जहाज को भी वो तैयार कर रहा था। Those who have such a secular job and also we have to do the God's business. और हमें से जिन लोगों की एक नौकरी भी है और उसी के साथ हमें परमेश्वर का भी काम करना है। Yeah, the same in Genesis 6:32 said that Noah did according to everything according to the God's command. और उत्पत्ति 6 में लिखा है कि परमेश्वर की 22 में लिखा है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। Yeah, so and side by side he warned the people the 120 years. और उसी के साथ उसने लोगों को ये चेतावनी भी देते रहा 120 वर्ष तक। Same things, maybe they have heard the many gospel, many messages from Noah. शायद उन लोगों ने भी नूह से कई संदेशों को सुना होगा, but they never practice. पर उन्होंने अपने जीवन में उनको कभी नहीं लाया। The end time, like Brother Abu said that in Timothy also, that the different symbols of the end, different things will happen. We have heard many gospels, but we never use them in our life. और जैसे भाई अबू ने भी कहा, तिमोथी में लिखा है कि अंत के दिनों के कुछ चिन्ह होंगे। हमने इन बातों को कई बार सुना है, पर शायद कभी हमने उनको अपने जीवन में नहीं लाया। The end time, the 600 years time, the rain came, and after that, let us see in last slide. और 600 वर्ष के अंत में बारिश हुई। And yeah, the ark, we are in a safe if we believe and we have a practice. Then rest the whole world are in danger. और अगर हम इन बातों पर विश्वास रखते हैं और उनको लागू भी करते हैं जीवन में, तो फिर हम अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे जब इस पूरे संसार में खतरा होगा। And the symbol of the rainbow is the promise of God's promise. और वो जो इंद्रधनुष, ये परमेश्वर का एक चिन्ह, परमेश्वर के वायदे का एक चिन्ह था। The same lots of promise in New Testament God and through Jesus has given us a whole lot of promise. और वैसे ही नई वाचा में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें भी कई प्रतिज्ञाएं दी है। Just today's message also the family and bearing with one another. The memory verse also said the John 17:22. और हमारा आज का संदेश भी परिवार के विषय में, एक दूसरे को सहने के विषय में, और हमारा मेमोरी वर्स भी यूहन्ना 17:22। So like a Noah's family, we are in a family, the big church family. Just let us bear one another and to be oneness, so that we have a very good fellowship with God. और नूह के परिवार जैसे हम भी कलीसिया में एक परिवार है, और नूह के तरह ही हम भी एक दूसरे के साथ संगति रखें और परमेश्वर के साथ संगति रखें। Though we have a different mentality, habits and different cultures, but still we are in one. हमारे अलग-अलग आदतें हो सकती है, अलग-अलग सोच हो सकते हैं, उसके बावजूद हम एक है। Thank you, brother. Praise the Lord, dear brothers and sisters. और प्रभु की स्तुति है भाई और बहनों। The most wonderful honor and privilege that God given to man. और जो सौभाग्य जो परमेश्वर ने एक मनुष्य को दिया हुआ है, is that to fellowship with him. और वो ये है कि वो मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति कर सके। We don't value it enough sometimes. और कई बार उसे जैसे हमको जितनी पर्याप्त मात्रा में करना चाहिए उतना नहीं करते हैं।
we can understand how important fellowship with God for Jesus Christ. और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के लिए उस संगति का महत्व मूल्य कितना अधिक है। We can see that in particularly in one incident. और हमारे एक दैनिक जीवन की घटना के अंदर देखते हैं In the Garden of Gethsemane, Jesus Christ saying that, और गत्समनी के बगीचे में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, please don't let me drink this cup. और प्रभु यदि हो सके तो प्रभु मैं ये प्याला मुझसे तो दूर कर। That we can see in Luke chapter 22:42. और हम 22 अध्याय के 42 वचन में इसको पढ़ सकते हैं। I don't want to drink. He's saying just like he's praying just like a man. एक मनुष्य के रूप में ही इस प्रकार वो प्रार्थना कर रहा है कि यदि हो सके तो प्याला मुझसे प्रभु तो दूर कर। What was that cup? और ये प्याला क्या था? For many years, I truly didn't understand that verse. और बहुत सालों तक मैं इस वचन को नहीं समझ पा रहा था। Was it that the Jesus Christ didn't want that he's afraid for dying? और क्या इसलिए वो वो प्याला नहीं पीना चाह रहा था क्योंकि वो क्रूस पर मृत्यु होने के लिए वो डर रहा था? No, there are many Christian believers died for Christ. और यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह के लिए जिन्होंने मृत्यु पाए हैं। People were tortured for 10-12 years in the prison. They didn't deny the Christ. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मसीह को कभी उन्होंने त्यागा नहीं, इनकार नहीं किया और उस बंदी गृह के अंदर बहुत सालों तक वे रहे हैं। How can we believe that Jesus Christ afraid of dying on the cross? तब हम कैसे इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु होने के लिए डर रहा था उस समय? He loved so much that he is willing to die 1,000 times on Calvary for our sins. और वो हमसे इतना अधिक प्रेम करता था कि वो ऐसी मौत जो कलवरी क्रूस की ऐसी 1000 मौतें भी उसी के समान हमारे लिए लेने के लिए तैयार था वो। What was the cup that he was praying, I don't want, let this not happen to me? और तब वो प्याला क्या था जिसे वो नहीं पीना चाहता था? The cup was the break of fellowship with the Father. और वो प्याला था कि वो उसकी और पिता की संगति जो है वो उसे टूटना या उसको टूटते हुए नहीं देखना चाहता था। That he is experiencing for 3 hours on the cross. और वहां पर वो जो 3 घंटे तक उसने उस क्रूस के ऊपर जो अनुभव करने वो जा रहा था उस अलगाव को। It is not for the physical death and pain. और यहाँ पर वो शारीरिक नहीं था वो। And we don't understand how Jesus lived on this earth. और हम इस बात को नहीं समझ पाते कि यीशु ने संसार में इस पृथ्वी पर कैसे जीवन बिताया। He lived moment by moment with the fellowship with the Father. और उसने हर एक क्षण के बाद दूसरा क्षण हर एक समय उसके पिता के साथ संगति में इस जीवन को संसार में बिताया। For every little thing he depended on the Father. और हर एक छोटी सी छोटी बात के लिए वो यीशु मसीह अपने पिता के ऊपर निर्भर रहता। For Jesus Christ, fellowship with Father is most important than anything else. यीशु मसीह के लिए उसके पिता के साथ संगति किसी भी चीज से बढ़कर मूल्यवान और महत्वपूर्ण थी। A small sin that could break fellowship with Father even. और एक छोटा सा भी पाप यदि पिता के करने से पिता के साथ यदि वो संगति को वो तोड़ सकता था। That is the way Jesus Christ lived with the fellowship with Father. और इसी प्रकार यीशु मसीह रहा पिता के साथ संगति में संसार में। Sometimes we don't take sin seriously. और उसी प्रकार जब वो हम पाप को गंभीरता से नहीं लेते। We are willing to break fellowship with Father with our small or big sins. और छोटे या बड़े पाप करने के लिए हम उस पिता के साथ उस संगति को जो घनिष्ठ संगति उसे तोड़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। But for Jesus Christ, he couldn't break fellowship with Father even for single second. लेकिन यीशु मसीह के लिए ऐसा नहीं था। एक भी क्षण के लिए एक सेकंड के लिए भी वो पिता के साथ संगति को टूटना नहीं चाहता था। When he was in Gethsemane, he was thinking that और जब वो गत्समनी के बगीचे में था वो ये सोच रहा था now for 3 hours the fellowship will break. अब 3 घंटे जो है उस संगति को जो टूटने जा रही है। But I was thinking why it will be broken. और मैं सोच रहा था कि वो संगति क्यों टूटने वाली थी। Because the Father will forsake him. क्योंकि पिता यीशु मसीह को त्यागने वाला था। But why Father is forsaking him? क्यों पिता उसको यीशु मसीह को त्याग रहा था? Jesus never sinned in his life.
यीशु मसीह ने कभी भी उसके जीवन में पाप नहीं किया था, but he is going to take our sins. लेकिन वो हमारे अपराधों को लेने के लिए वहां था। He is going to take our sins as he himself committed them. और उसने उन पापों को इस प्रकार अपने ऊपर लिया जैसे कि उसने उन पापों को लिया और अपने ऊपर अधर्मों को हमारे उसके ऊपर ले लिया। The punishment for all the sins that the millions of people done in the world, that he has to take it. और सारे संसार या जगत भर में सारे जो हजारों करोड़ों लोग जिन्होंने उस पापों को किया था, उसको उन पापों अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया। The punishment for the sin is not physical death. और पापों की जो दंड जो है वो शारीरिक मृत्यु नहीं है। If it is a physical death, when we die, we paid the punishment for our sins. और यदि ये ऐसा होता तो जब हमारी मृत्यु होती तो उस पाप का दंड हम जरूर भुगतते हैं या उसे देते हैं। Then everybody dies, can go to heaven. और तब जो हर व्यक्ति का मृत्यु होता है स्वर्ग में जाएगा। A lot of people think that just physical death, it was the punishment for our sins. और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये जो शारीरिक मृत्यु जो है वो हमारे पापों का दंड जो हम भुगतते हैं वो है। Physical death is not punishment for our sins. और शारीरिक मृत्यु वो हमारे पापों का दंड भोगने के कारण नहीं है। It is forsaken by the God in the hell for eternity. और ये परमेश्वर द्वारा उस अनर्थ के अंदर अनंत काल के लिए त्यागा जाना है। That's the punishment for the sin. और वही जो है पाप का दंड है। Hell is the place where forsaken by the God. और वो नर्क जो है वो परमेश्वर द्वारा त्यागा हुआ वो स्थान है। In that 3 hours, Jesus Christ forsaken by the Father. और उस 3 घंटों के अंदर यीशु मसीह जो है पिता द्वारा त्यागा गया था। And taken the punishment of sins of millions of people. और उसने उन हजारों और बहुत सारे उन करोड़ों लोगों का जो पाप का दंड अपने ऊपर ले लिया वहां पर। If he would have not taken the sins on that time, I would have gone to the hell. और उस समय यदि उसने सारे संसार भर के मेरे पापों को नहीं उठाया होता तो आज मैं नरक में जाता। We have to take our sin so seriously and repent if we commit it. और हमारे इसी कारण हमें हमारे पापों को बड़ी गंभीरता से लेना है। यदि हमने पाप किया है तो उससे हमें मन फिराना है। I would like to read one verse in end. और एक वचन मैं अंत में पढ़ना चाहूंगा। John chapter 3 and 16. यूहन्ना 3:16। For this how God loved the world, he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। Amen. Thank you, brother. Really God for what we heard today. और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो बातें आज मैंने सुनी उसके लिए। Couple of things which Brother Abu had shared, I really want to take it to my heart. और कुछ बातें भाई अबू ने जो बताई वो मैं अपने हृदय में आज उसे लेना चाहता हूँ। We all can also remember it and think over it. हम सब उसे याद कर सकते हैं, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। Are we in touch with God? और क्या हम परमेश्वर के साथ उस संपर्क में हैं? Are we in personal relationship with God? और क्या हम उस परमेश्वर के साथ उस व्यक्तिगत उस रिश्ते में या संबंध में हैं? Is my love passive? क्या मेरा जो प्रेम जो है वो बहुत ही पैसिव है? Do I overlook failures and forgive? और क्या मैं माफ कर पाता हूँ या लोगों की गलती को नजरअंदाज कर पाता हूँ? Is there is a mind and heart like Jesus to set relationship, set things right? और क्या मेरे पास वो हृदय या मन है जो चीजों को जो है व्यवहारों को चीजों को ठीक करता है? And am I ready to forgive, forget and reconcile? और क्या मैं तैयार हूँ माफ करने के लिए, भूलने के लिए और मेल मिलाप करने के लिए? When I think this couple of questions, I just my mind just went to the Lord's Prayer. और इन बातों को सोचने के बाद कुछ चीजें जब मैं सोच रहा था, मैं प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना के ऊपर ध्यान दे रहा था। In Matthew chapter 6 verse 12.
जो मत्ती 6:12 में लिखा हुआ है, It's written like this, and forgive us our debts as we ourselves forgive others' debts. और जैसे हम अपने अपराधों को माफ करते हैं अपराधियों को, वैसे ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। There are two tense over here, the past and the present. यहाँ पे दो काल की बात की गई है, जो वर्तमान है और एक भूतकाल है। The present is I am telling God, God, you forgive me for my debts and my things, what I have done. और मैं परमेश्वर को बताता हूँ कि मेरे बीते हुए समय के जो मेरे पाप है उसके लिए मुझे क्षमा कर। This I'm telling because with a reference where I have like that I have forgiven others. और ये मैं परमेश्वर को इस संदर्भ में कहता हूँ कि प्रभु, क्योंकि मैंने दूसरों को क्षमा किया है। Is that really happened in my heart? Then only I can go and tell and I can pray this Lord's Prayer. पर क्या ये सचमुच मेरे हृदय में हुआ है? तभी जाकर मैं प्रभु को ये प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना में उसके सामने कर सकता हूँ। Because if my relationship with God is not right, that is what we saw, that the personal relationship with God, that is when I can go when I have corrected my past, or whether I have forgotten and forgiven. क्योंकि अगर परमेश्वर के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध नहीं है तो मैं उसके पास नहीं जा सकता। मैं तभी जा सकता हूँ जब मैंने अपने बीते हुए समय के जो बातें हैं उनको सुधारा है और लोगों को क्षमा किया। As we read it earlier, that the brother who was not forgiven, he brought his gift and God said, you leave it there and go back and reconcile. जैसे हमने पहले भी पढ़ा कि जो व्यक्ति उसके भाई को क्षमा नहीं करता वो वहां अपनी भेंट लेकर आता है। प्रभु कहता है कि अपनी भेंट वहीं छोड़ और जाकर पहले मेल मिलाप कर। When I read this verse 12, it is really it is not a small thing. It is something where I have to I should not have a little bit of unforgiveness in my mind and then pray this words. It's not going to work in my life. और जब मैंने इस 12वें वचन को पढ़ा तो मैं सचमुच अपने जीवन को देखना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी भी क्षमा नहीं करने की आत्मा को रखकर इस प्रार्थना को नहीं करता, फिर इस प्रार्थना में कोई फायदा नहीं होगा। Because it is further explained in verse 14 and 15 what exactly it means. क्योंकि आगे 14-15 वचन में फिर एक बार ये समझाया गया है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। For if you forgive others' sin, your heavenly Father will also forgive you. क्योंकि यदि मनुष्य के अपराध तुम क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। So this tells me that if I'm carrying something, a load, where I have still not forgiven or forgotten about it, and I come and sit in the church, or I try to pretend that I am pure in my heart, it is not at all going to work for me, and I have no place, in other words. और ये वचन मुझे बताता है कि अगर मैं कोई बोझ लेकर मानो किसी को क्षमा न करके कलीसिया में आता हूँ या प्रार्थना करता हूँ तो फिर मेरे कोई जगह नहीं है, वो मेरा स्थान सही नहीं है। And another part of that verse 15, it says, if you do not forgive others, your Father will not forgive you your sins also. और 15 वचन में उसी का ये भी लिखा है कि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। This is something like if I have done something in my past and my father has forgiven before, and I have not forgiven my brother or any of in my relation with my wife or anything, and I have not forgiven, that past forgiveness, God will cancel it for me. It will not be forgiven. ये ऐसा है कि अगर भूतकाल में परमेश्वर ने मेरे पापों की क्षमा की है और आज मैं किसी व्यक्ति के अपने पति या पत्नी को क्षमा नहीं करता तो परमेश्वर ने जो पहले ही मुझे क्षमा की है वो सारी क्षमा को वो नजरअंदाज करके आज मेरे पाप क्षमा नहीं हुए हैं। This is something I need to take in my heart in a very serious way, where that relationship I need to have with God continually without having any differences of my living of purity. और ये बात है जो मुझे बहुत ही गंभीरता से लेनी है और अपना जो शुद्धता का जीवन है परमेश्वर के सामने उसको जारी रखना है। I really praise and thank God. Amen. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, स्तुति देता हूँ। आमीन।